morning everyone. Welcome to this video. We are again resuming our online classes after winter vacation. I hope you all have enjoyed your holidays in a very good way and also have done your homework. Okay, so let's start today's video with the new chapter, that is fun with magnet. Chapter 13. Can you see in this see in this picture? This is a huge heap of waste material where so many iron pieces are there, and it is segregating with the help of a crane that containing a magnet. So how helpful is a magnet? We can separate iron materials from the heap of waste materials in a very easy way with the help of magnet. You all have seen the magnet in your home also, in so many small things in your home. Okay, so just like, have you seen a magnet in your box? So many box having the magnet in it. आप उसे close करेंगे वो close हो जाता है, तो it is having the attracting quality. Some box having these type of magnets inbuilt in a particular way, right? So, and also all you have fridge at your home, so fridge also contain a magnet at a doorstep, right? A pin holder is also a good example of magnet. Magnet attracts the metal, just like nickel, cobalt, iron. So first of all, let's learn what is magnet and how it is discovered. A piece of iron or any other material which has the ability to attract other object. एक पीस, आयरन का वो पीस या फिर वो मटेरियल जिसमें एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, कंपास नीडल, फ्रिज मैग्नेट, MRI scanners are some examples of magnet. Or magnet in your box also is also example of magnet. So let's discover how magnet discovered. Let's find out how magnet discovered. Magnet की discovery कैसे हुई? It is said that there was a shepherd. एक shepherd था जिसका नाम था Magnus. Okay, उसका नाम क्या था? Magnus. Who lived in ancient Greece. Right? वो ग्रीस में रहता था. He used to take his herd of sheep and goats to nearby mountains for grazing. वो क्या करता था? वो हमेशा अपने जो sheeps थे, उसकी गोट्स थी, उन्हें कहाँ लेके जाता था? उनको चराने के लिए, घास चराने के लिए लेके जाता था, ग्रेजिंग के लिए माउंटेन्स में लेके जाता था. He would take a stick with him to control his herd. उसके पास एक स्टिक हुआ करती थी ताकि वो जो बकरियों का झुंड है उसे कंट्रोल कर सके. Right? The stick has a small piece of iron attached at the one end. और वो जो स्टिक थी, उस स्टिक में उसके जो एंड पार्ट था उसमें आयरन लगा हुआ था. राइट? तो उसकी जो स्टिक थी उसमें उसके जो एंड पार्ट था उसमें क्या था? आयरन था. ओके, सो वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक. एक दिन क्या हुआ, जैसे वो अपनी शिप्स को जैसे ग्रेजिंग के लिए लेके जाता था, तो वो जैसे कि एक रॉक पे वो अपना क्या करता है? स्टिक को मारता है. राइट? और जब स्टिक को जब रॉक पे मारता है तो उसको वो क्या करता है? खींचना चाहता है अपनी स्टिक को, लेकिन वो खींच नहीं पाता है. राइट? इट इज ही फाइंड इट हार्ड टू सेपरेट इट फ्रॉम द रॉक. सो that is the reason. It seemed as if stick was being attracted by a rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip
ऑफ द शेपर्ड सिक। तो हुआ क्या था एक्चुअल में क्या था कि वो जो रॉक थी उसमें नेचुरल मैग्नेट था, राइट, और नेचुरल मैग्नेट ने क्या कर दिया, उसकी स्टिक को क्या कर दिया था, उस पर अट्रैक्ट कर दिया था, उसकी जो स्टिक थी, उसका जो टिप थी उसमें अट्रैक्ट हो गई थी। सो दैट्स वाई इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड। इस तरीके से जो नेचुरल मैग्नेट है वो डिस्कवर हुआ, और दैट्स वाई जो मैग्नेटिक जो रॉक जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसको मैग्नेटाइट कहा गया। ऐसी रॉक्स जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि शेपर्ड के थ्रू फाइंड आउट हुई थी, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। ओके, एंड और उसका नाम किसके नाम से पड़ा, शेपर्ड के, क्योंकि शेपर्ड का नाम क्या था, मैग्नेस था, और उस रॉक का नाम क्या पड़ा, मैग्नेटाइट, जिसमें मैग्नेट आपका फाइंड हुआ था। ओके फाइन, ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मैग्नेट। स्टूडेंट, so many magnets are types of magnets are there. One is horseshoe magnet, bar magnet, cylindrical or ball-ended magnet, right, and horseshoe magnet. Needle magnet is also there. Okay, so you can see in that compass needle also. So you can see here, this is horseshoe magnet, this is cylindrical magnet, this is ball-ended magnet. Can you see this ball-ended magnet? And this one is a bar magnet. So these are the types of magnets available in these days. So let's learn about the magnetic and non-magnetic material. Student, सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती हैं, ये आपको पता होगा, राइट। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, उन मटेरियल्स को मैग्नेट कहते हैं, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ओके, जस्ट लाइक निकल हो गया, निकल आपका मेटल है, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, एंड आपका जो आयरन है, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा और चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है। ओके, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में जैसे कि आपके जो मटेरियल्स ऐसे हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। आपके घर में, सबके घर में मैग्नेट्स होंगे, राइट। तो आप सबको ये करना है, आप मैग्नेट लेना है और चेक करना है कि कौन से मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन से नहीं है, राइट। सो एग्जाम्पल, रबर, प्लास्टिक, क्लोथ्स एंड ग्लासेस, दीज आर द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। Is it clear to everyone? These are the non-magnetic materials. So you can see in this picture so many magnetic materials are there and so many non-magnetic materials. आप इनको भी आप इस तरीके से भी सेग्रीगेशन कर सकते हो। आप देख सकते हैं कौन से मैग्नेटिक है और कौन से जो मेटालिक, आपके मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके घर में, वो सारे क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो नॉन मेटालिक हो गए, जैसे कि आपका सिंपल आपका वुड की कोई चीज़ हो गई, क्लोथ हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, आपके सीमेंटेड कोई चीज़ हो गई, दीज आर ऑल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, ग्लास हो गया, वो भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में ही आता है, राइट। सो लेट्स लर्न अबाउट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। Iron fillings or any other magnetic object attract to a magnet always accumulate at the end of the magnet. आपको ये देखने को एक एग्जाम्पल मिलेगा कि हमेशा जो, अगर आप आयरन फिलिंग्स लेंगे और मैग्नेट से उसे अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, तो ये नोटिस करने को मिलेगा लाइक कि जो आपका मैग्नेट है उसके जो एंड पार्ट होता है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। एंड पार्ट में ही आपका जो मैग्नेट, जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो एंड पार्ट में ही अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि वो एरिया जिसमें अट्रैक्शन है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स। मैग्नेट्स के कितने पोल्स होते हैं? टू पोल्स। वन इज नॉर्थ पोल, सेकेंड इज साउथ पोल। द नॉर्थ सीकिंग पोल और द पोल विच फेसेस नॉर्थ। ऐसा पोल जो आपका नॉर्थ की तरफ आपका फेस करता है वो आपका
क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, राइट। और जो साउथ फेसिंग पोल है वो आपका साउथ पोल हो गया। आप एक मैग्नेट को क्या करेंगे, आप एक मैग्नेट को लटका के देखिए, तो जो मैग्नेट है वो अपने आप नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन ले लेगा। जो आपका नॉर्थ साइड होगी वो जो आपका एक पोल होगा वो नॉर्थ साइड डायरेक्ट हो जाएगा, और आपका एक जो एंड होगा वो साउथ तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। तो वो अपने आप ही अपनी डायरेक्शन शो करवा देते हैं। दैट्स वाई हम इसे कंपास में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। ओके, सो कैन यू सी दिस, नॉर्थ एंड साउथ, वी हैव टू पोल्स, दीज आर नॉर्थ एंड साउथ। इसका आप एग्जाम्पल जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयरन फिलिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। आपको क्या करना है, कुछ आयरन फिलिंग्स को एक शीट ऑफ पेपर में क्या करना है, इकट्ठा कर देना है। ओके, नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। आपने इसमें पूरा स्प्रिंकल कर दिया, जो आपका ये जो आयरन फिलिंग है पूरी शीट में स्प्रिंकल कर दिया। फिर जैसे ही आप क्या करोगे, बार मैग्नेट को उस शीट में डालोगे, राइट, तो आपको देखने को मिलेगा कि यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट ऑफ मैग्नेट। आपको देखने मिलेगा कि जो आयरन फिलिंग है वो आपके कुछ पर्टिकुलर पार्ट में ही आपके जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। सो रिमूव द फिलिंग, स्टिक टू मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। इसको आप बार बार करेंगे तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। जैसे आपको इसमें एक पैटर्न दिख रहा है ना, इस तरीके से एक पैटर्न मिल जाएगा आयरन फिलिंग का। तो इस तरीके से आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं आपके जो आयरन है, जो आपका मैग्नेट है उसके अट्रैक्शन का, कि पोल्स में आपका जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से अपने आप ही वो एक शेप ले लेंगे, अट्रैक्शन का जो शेप है वो ले लेंगे। ओके, सो that's why the magnet is helpful in finding direction, क्योंकि इसके एक पर्टिकुलर नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। आप उसे लटकाएंगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दैट्स वाई उसको कंपास में यूज़ किया जाता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच द मैग्नेट फोर्स एक्ट। वो रीजन, मैग्नेट का वो रीजन जिसमें आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इसके आसपास जो आपके पोल्स के आसपास जो फील्ड, जो आपका एरिया होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले डायग्राम में भी दिखाया था, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया जहाँ पे अट्रैक्शन। तो अपने आप ही एक लाइन्स बन गई है, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स बन गई है वो अपने आप बन गई है, राइट। तो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स, वो हमेशा पोल्स में ही आपका स्ट्रॉन्ग होता है। दिस इज द रीज़न वाई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्टेड। यही रीज़न है जो आपका मैग्नेटिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड द एंड ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के एंड में जाके वो अट्रैक्ट होते हैं। ओके, आप इसका बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, जिसमें आप एक मैंने आयरन फिलिंग वाला आपको एग्जांपल दिखाया था कि आप इसको, वेट अ मिनट, हाँ बेटा, लेट मी फाइंड इट, यस। So this activity you can do also, and if possible तो I will also show you this activity, like iron fillings अगर मुझे मिलती है और मैग्नेट अगर मुझे बार मैग्नेट अगर मिलता है, I will find out the bar magnet, then I will show you the activity of this, right। इसमें आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उसमें आयरन फिलिंग को स्प्रेड करना है, and then you have to put a bar magnet over that sheet, and then you have to do this process again and again, and then you will see the magnetic field lines।
This magnetic field lines showing the magnetic field, showing the area where the magnetism is मोस्ट इन दैट पर्टिकुलर मैग्नेट, जिसमें आपके जो एंड्स होते हैं उसमें आपका मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए उस एरिया में ही मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो वहीं पे जो लाइंस बनती है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि वो एरिया हो गया जहाँ पे आपका जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। सो थैंक यू स्टूडेंट, I will continue with this with new topics of this chapter in my next video. So you have to do your work in a proper way. You have to do your questions after watching the video. You have to solve your questions after watching the video. Some questions already having some answers, but you have to do those questions. Those I'm writing that you have to watch the video. So do not write like this only. You have to watch the video first, and then you have to solve your worksheet. Okay, thank you everyone.